Hello everyone. Today we are going to deal with Indian Contract Act 1872. Indian Contract Act 1872 comprises of 266 sections and 11 chapters. Indian Contract Act came into force on 1st of September 1872. Indian Contract Act जो बिल है जो प्रेजेंट हुआ था पार्लियामेंट में which got the president assent on 25th of April 1872. This was the act made by the Britishers at the time of British Empire. Indian Contract Act 1872 is divided into two parts. First one, which deals with section 1 to section 123, which deals with the general provisions of Indian Contract Act. Second part deals with the specific provisions from section 124 to section 266 of the Indian Contract Act. Now, section number 76 to section number 123 has been repealed. Repealed means removed from the Indian Contract Act, and now there is another act named as Sales of Goods Act 1930 has been formed instead of section 76 to 123. Now section 239 to 266 also has been repealed, and now the act called Indian Partnership Act 1932 has been formed after repealing the section 239 to 266 of Indian Contract Act. Now we are going to deal with the sections of Indian Contract Act. Section 1 of the Indian Contract Act tells us about the short title, extent and commencement of the Indian Contract Act. Indian Contract Act short title says the act may be called as the Indian Contract Act 1872. जो हमारा एक्ट है उसका पूरा नाम द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है. It extend to the whole of India. It extend to whole of India and came into force on the first day of September. जी हमने ऑलरेडी मेंशन है यहाँ पे फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 1872. कमेंसमेंट डेट है ये हमारी 1872, फर्स्ट सितंबर 1872. Now section 2 deals with the interpretation clause, or we can say it deals with the definition clause. सेक्शन 2A. सेक्शन 2 हमें ए जो है हमें डेफिनेशन देता है प्रपोजल और ऑफर की. ऑफर इट क्लियरली सेज व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग with the view to obtaining the assent that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal. Proposal is also known as the offer. सेक्शन 2A हमें बताता है कि जब एक आदमी किसी दूसरे आदमी को उस एक प्रपोजल देता है, ठीक है, या उससे उसकी विलिंगनेस चाहता है उस प्रपोजल पे टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद द व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट, उसकी एसेंट या उसकी एक्सेप्टेंस लेने के लिए, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं प्रपोजल. प्रपोजल इज जस्ट लाइक एन ऑफर. As we can see, just there are two parties, A and B. When A is making an offer to B that I want to sell my car for rupees 10,000, तो A जो है वो B को ऑफर दे रहा है कि मैं जो अपनी गाड़ी है, कार है, वो आपको 10,000 रुपये में बेचना चाहता हूँ. तो इट वॉज एन ऑफर और यू कैन से इट अ प्रपोजल. Now section 2B, which deals with the acceptance, or you can say it promise. Section 2B says that when the person to whom the proposal is made, वो आदमी जिसको प्रपोजल मिला है, ठीक है, is made signifies his assent thereto, वो उस पर अपनी acceptance देता है, the proposal is said to be accepted.
तो जब वो अपने उस पर सिग्निफाई करेगा, अपनी एसेंट देगा उसको, तो वो जो प्रपोजल है वो एक्सेप्टेड माना जाएगा। द प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रोमिस। सेम एग्जांपल है, जैसे ए ने बी को ऑफर दिया कि मैं अपनी अब कार आपको बेचना चाहता हूँ 10,000 रुपये में। यहाँ से बी ने इनको वापस ऑफर दे दिया, ओके आई एम रेडी टू बाय योर कार एट ₹10,000। ये जो बी ने इनको बोला, ये एक्सेप्टेंस बी अपनी दे देता है और ये एक प्रोमिस बन जाता है। नाउ वी आर गोइंग टू डील विद सेक्शन 2C। सेक्शन 2C gives us the definition of promiser and promisee. A person making the proposal is called the promiser. जो पर्सन प्रपोजल मेड कर रहा है वो है प्रोमिसर। यहाँ पे ए क्या है, ए है हमारा प्रोमिसर, ठीक है। एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड प्रोमिसी, और बी क्या है हमारा प्रोमिसी है, ठीक है। नाउ सेक्शन 2D डील्स विद द कंसिडरेशन। सेक्शन 2D says when at the desire of the promiser, the promisee or any other person has done or abstained from doing or does or abstain from doing or promises to do or abstain from doing something, such act or abstinence or promise is called a consideration for the promise. आप देख रहे हो जैसे ए और बी है, बोथ आर गिविंग कंसिडरेशन टू ईच अदर। ए कंसिडरेशन दे रहा है दैट आई विल गिव यू द कार, बी कंसिडरेशन दे रहा है दैट आई विल गिव यू द 10,000 रुपीज। बोथ आर गिविंग कंसिडरेशन टू ईच अदर, ठीक है। तो कंसिडरेशन इसमें क्या हुआ हमारा, जो ये दोनों एक दूसरे को दे रहे हैं 10,000 रुपीज, ये इसको दे रहा है और ये कार इसको दे रहा है, ठीक है। दैट इज आवर कंसिडरेशन। और जो कंसिडरेशन मूव करेगी वो एट द डिजायर ऑफ किसके मूव करेगी, प्रोमिसर के मूव करेगी, जो हमारा प्रोमिसर ए है। ए कह रहा है कि 10,000 में मैं अपनी गाड़ी बेचना चाहता हूँ, ठीक है। बी उसको एक्सेप्ट कर रहा है। 10,000 जो हमारा अमाउंट है वो हमारा कंसिडरेशन का अमाउंट है। नाउ वी आर गोइंग टू डील विद सेक्शन 2E। 2E tells us the definition of agreement. Every promise or set of promise forming the consideration for each other is an agreement, ठीक है। जो ये दोनों आपस में प्रोमिस कर रहे हैं एक दूसरे को, जैसे ए ने बी को प्रोमिस किया कि मैं अपनी गाड़ी दूंगा, आप मुझे 10,000 रुपीज़ देना, ठीक है। तो उस प्रोमिस को हम एक ऐसे एग्रीमेंट ट्रीट करेंगे, ठीक है। नाउ सेक्शन 2F डील्स विद द रेसिप्रोकल promise which form the consideration or part of consideration for each other are called reciprocal promise. देखो जैसे इसमें ए है वो बी को कंसिडरेशन दे रहा है, ठीक है, कुछ, और बी जो है वो ए को कंसिडरेशन दे रहा है, ठीक है। दोनों एक दूसरे को प्रोमिस कर रहे हैं कि मैं आपको अपनी गाड़ी दूंगा, और बी प्रोमिस कर रहा है मैं आपको 10,000 रुपये दूंगा। दोनों एक दूसरे के साथ प्रोमिस कर रहे हैं, कंसिडरेशन दे रहे हैं, तो उसको बोलते हैं हम रेसिप्रोकल प्रोमिस, व्हेन बोथ द पार्टीज आर गिविंग प्रोमिसेस टू ईच अदर, ठीक है। नाउ सेक्शन 2G। सेक्शन 2G हमें डेफिनेशन देता है वॉइड एग्रीमेंट की। एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी अ वॉइड। ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल ना हो लॉ के द्वारा, वो वॉइड एग्रीमेंट कहलाता है। नाउ वी आर गोइंग टू डील विद सेक्शन 2H which gives us the definition of the contract. Section 2H says an agreement enforceable by law is called a contract. ये जो सेक्शन 2H है ये हमारा जुडिशरी में क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है यूपी जुडिशरी में, और भी काफ़ी सारे एग्जाम्स में कई बार ये सेम डेफिनेशन आ जाती है। एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ, और ब्लैंक डैश छोड़ देते हैं, फिर आपको बताना होता है कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 2H एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। इसमें एनफोर्सेबल बाय लॉ मतलब इसका मतलब है कि कोई जो कॉन्ट्रैक्ट है
उसके लिए जो रेमेडी है लॉ के अंदर, ठीक है, तो ही वो कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। नाउ वी आर गोइंग टू डील विद द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 2I voidable contract. An agreement which is enforceable by law at the option of one or more of the parties thereto, but not at the option of the other or others, is a voidable contract. जैसे हमारा ए और बी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, अगर किसी भी कारणवश ये जो कॉन्ट्रैक्ट दोनों ए और बी के बीच में हुआ है ये फुलफिल नहीं हो पाता है, ठीक है, या पार्टी ए है या बी है वो नहीं करना चाहती कॉन्ट्रैक्ट, तो वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा अगर पार्टीज आर नॉट विलिंग टू डू अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ये चाहे तो विड्रॉ कर सकते हैं अपनी कंसेंट को। नाउ वी आर गोइंग टू डील विद सेक्शन 2J विच टॉक्स अबाउट द डेफिनेशन कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। कभी भी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, वॉइड सिर्फ एग्रीमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो हमेशा कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड्स होता है, ठीक है। अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। जैसे ए और बी है, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ दैट ए सेड टू बी दैट आई विल गिव यू 10,000 रुपीज़ इफ़ यू मैरी माई डॉटर सी, ठीक है। और जो सी है, सी की अगर डेथ हो जाती है बिफोर मैरिज तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फुलफिल हो ही नहीं पाएगा, ठीक है, क्योंकि सी की तो डेथ हो गई तो बी शादी कर ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो एट दिस स्टेज द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।